Hello student, in previous class we have completed design of shaft, but here we are discussing about the design of key. The first question is, what is the key? Key is the mechanical element, a parts of mechanical element through which we have connected the shaft and hub या boss through the by the inserting of a by the inserting of a piece of mild steel. This piece of mild steel is called key. Okay, so जो की है, की क्या करेगा, की मेन है, की का वर्क होगा, की का जो वर्क होगा वो होगा शाफ्ट एंड, जो शाफ्ट है रोटेटिंग एलिमेंट, शाफ्ट एंड हब, जो शाफ्ट और हब को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करता है। कैसे? जब हम उसमें शाफ्ट और हब में हम क्यूए क्रिएट करते हैं, क्यूए में हम क्या करते हैं इंसर्ट, की को इंसर्ट करते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा, जो शाफ्ट और हब का जो रिलेटिव मोशन को हम क्या करेगा, वो प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। ओके। जो यहाँ पर जो की होगा, हमेशा की को इंसर्ट किया जाता है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट। ओके, तो मेन यहाँ पर मेन है कि ये क्या मेन इसका जो वर्क है डिजाइन जो की का, वो प्रिवेंट करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन द शाफ्ट एंड हब। ओके, हब, व्हाट इज द हब? हब इज द पार्ट ऑफ पुली। ओके, hub is the part of pulley through which pulley is connected to the hub, connected to the shaft. Okay, so जो की है, की जो बना होगा, की का जो मटेरियल होगा वो माइल्ड स्टील में हम करते हैं, माइल्ड स्टील का यूज करते हैं। ओके, माइल्ड स्टील का यूज करते हैं फॉर मेकिंग ऑफ की। ओके, तो इसमें है आगे, तो टाइप्स ऑफ, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ की इन जनरली, but in common, in general way, we have discussed about the types of key. Types of key here, 5 types. First one is the sunk key, second one is the saddle key, third one is tangent key, fourth is the round key, and 5 is the SV line key. Okay, they are the types of key which is discussed one by one. Okay, so first one is the sunk key. The first sunk key also divided in the 4 types. Okay, first one is the rectangular sunk key, square sunk key, parallel sunk key, give head sunk key. Okay, so these are the also type of sunk key. The sunk key, what is the sunk key? Sunk key is the key way. Okay, sunk key the key which cross section is rectangular. Okay, first one rectangular sunk key. This type of sunk key which cross section of key, cross section of key is rectangular section. Okay, so their width, when rectangular cross section of sunk key, then width of key is equal to W and thickness of key is equal to T. We have assumed. Okay, so W is equal to D by 4. It means D by 4, D is equal to diameter of shaft, यानी जो भी हमारा थिकनेस होगा, जो
थिकनेस ऑफ सॉरी विड्थ ऑफ जो की होगा वो हमेशा डायमीटर का 1/4 होगा। ओके, ऑलवेज फॉर द डिजाइन पर्पज से हम यही यूज करते हैं। शाफ्ट का जो भी डायमीटर उसका 1/4 टाइम्स होगा उसका विड्थ किसका की का। ओके, और थिकनेस इसका होगा जो 2/3 टाइम्स ऑफ विड्थ होगा। इट मीन्स जो थिकनेस होगा इन द टर्म ऑफ डायमीटर इक्वल टू D/6, यानी डायमीटर का 1/6 इसका थिकनेस होगा। रेक्टेंगुलर है। ओके, रेक्टेंगुलर है तो इसका विड्थ हुआ और थिकनेस हुआ। ओके, अब देखिए जो आपका रेक्टेंगुलर की है वो आपका टेपर्ड भी हो सकता है और नॉन टेपर्ड भी हो सकता है। ओके, तो ये है आपका स्टेप रेक्टेंगुलर, तो इसमें टेपर्ड हो सकता है। तो देखिए आप देख सकते हैं पिक्चर, दिस इज द पिक्चर, दिस इज द शाफ्ट। ओके, रेक्टेंगुलर, दिस इज शाफ्ट एंड upper part we can see this one is the sun key, rectangular sun key which tapered in the ratio of 1:100 form. Okay, so I hope all of you got it. Okay, and second one is the square sun key. Okay, it is the square sun key. It means cross section of the sun key is cross section of key is square. Okay, square in the square form. It means width and thickness both are equal. Here it means when we have considered the thickness of width of key is equal to W and thickness of key is equal to T, then here in square Sankey thickness and width both are unequal. Okay, so that in rectangular section we have assume W is equal to D/4, यानी W यानी width of key is equal to 1/4 D into 1/4 टाइम्स। ओके, D का 1/4 टाइम्स। उसी तरह यहाँ पर जो होगा विड्थ होगा और थिकनेस भी दोनों इक्वल हो जाएंगे D/4 का D का 1/4 टाइम्स। ओके, सेकेंड है आपका पैरेलल संकी। इट मीन्स जो आपका स्क्वायर संकी हुआ और रेक्टेंगुलर संकी होगा वह टेपर्ड हो सकता है। ओके, बट पैरेलल संकी क्या टेपर्ड नहीं होगा। इट मीन्स हर एक पॉइंट पर इन ऑल पॉइंट हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इट मीन्स all it means their all location have thickness and width are uniform throughout length of संकी। ओके, पैरेलल संकी इट मीन्स जो भी हमारा जो संकी है, जो हमका पैरेलल संकी है, इसका थिकनेस जो होगा और विड्थ और थिकनेस दोनों क्या होंगे, सेम होंगे हर एक पॉइंट पे। हर एक जितना लेंथ होंगे, लेंथ के किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होगा। ओके, यानी एक टेपर्ड नहीं होगा। इट मीन्स एक टेपर्ड नहीं होगा, टेपर्ड। ओके, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पैरेलल संकी। ओके, नेक्स्ट वन इज द गिव हेड की। गिव हेड की इट इज आल्सो द टाइप्स ऑफ सन की। ओके, it is the just like the rectangular Sankey, but here there are one head at the one end of the rectangular Sankey. This it means this is the called गिव हेड की। यानी इसमें जो एक एंड पे जो होगा आपका रेक्टेंगुलर संकी है, उसके एक एंड पे क्या होगा, एक हेड होगा। ओके, देख सकते हैं आप फिगर। ओके, इस फिगर में ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, टेपर्ड 1:100 का है। ओके, और जो ये वन एंड पे है, एक एंड पे क्या है, ये देखिए आपका हेड बना हुआ है, इसलिए इसको हम कहते हैं गिव हेड की। ओके, so next one is the feather key.
it is also the types of key. Okay, this this one is uh, this type of key have attached with the one member of pair, such as which is shaft, hub of द पुली. ओके, तो इसमें क्या होगा, जो ये आपका फेदर की है, फेदर की का जो की है वो आपको शाफ्ट के साथ या हब के साथ ये क्या करेगा, हमेशा अटैच रहेगा. हमेशा स्क्रू ड्राइव के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अटैच कर देंगे. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अटैच किया हुआ है. ओके, तो अटैच किया हुआ है. और इसमें क्या होगा, इसमें जो भी हमारा जो आपका पुली होगा, जो हब होगा, हब क्या करेगा, रिलेटिव इन एक्सियल मोशन कर सकता है. ओके, एक्सियल मोशन इट मीन्स जो हब है वो लेफ्ट जा सकता है, राइट जा सकता है. ओके, लेफ्ट या राइट जा सकता है. ओके, बट इसमें क्या होगा, जो ये क्या करेगा, वो सिर्फ ट्रांसमिट क्या करेगा, टर्निंग मोशन को. टर्निंग मोशन मीन्स ये टॉर्क को जो भी शाफ्ट में डेवलप होगा उसको ट्रांसमिट करेगा, किसको, पुली को, या अदर पुली को थ्रू फाइन बेल्ट. ओके, इट मीन्स ये तो एक्चुअली मूव करेगा. एक्चुअली यानी शाफ्ट लेफ्ट, जो हमारा पुली है, जो हब है वो लेफ्ट जा सकता है. यहाँ पर जो ग्रीन साइडेड है वो है आपका हब. तो हब आपको लेफ्ट जा सकता है, राइट जा सकता है. ठीक है, मूव कर सकता है इस पोजीशन के अबाउट मूव कर सकता है. बट अब जो टर्न करना होगा, टर्निंग मोशन को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा. टर्निंग मोशन यानी टॉर्क को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा. कहाँ, शाफ्ट से किस में आएगा, वो हब के थ्रू आएगा, पुली में. ओके, जस्ट ये है आपका, ये किस में आप फिगर में देख सकते हैं. इसमें आप जो फेदर की है वो शाफ्ट से अटैच है, फर्स्ट वाले ए पिक्चर में. अब बी में है, आप देख सकते हैं इसमें क्या है, जो हब में क्या अटैच है, क्या, फेदर की. ओके, तो किसी में भी अटैच हो सकता है, फिर शाफ्ट में या हब में. अगला है आपका नेक्स्ट वन इज द वुड रूफ की. ओके, तो वुड रूफ की इज द, देखिए वुड रूफ की क्या है, वुड रूफ की इज द इजीली एडजस्टेबल की है. ओके, एडजस्टेबल की इसको एक्चुअली बोलते हैं. इट इज़ द पीस ऑफ सिलेंड्रिकल डिश हैविंग सेगमेंटल क्रॉस सेक्शन इन फ्रंट व्यू एस ओ इन फिगर. ओके, तो इसका क्या है, देखिए ये है एक सर्कुलर होगा, सर्कुलर डिश है, समझ लीजिए. सम थिकनेस का सर्कुलर डिश होता है, और उसको क्या करते हैं, सर्कुलर डिश को हम क्या करते हैं, बीच से कट देते हैं. यानी उसको ये समझिए, हमारे अगर फ्रंट व्यू से देखें तो हमारे सेमी सर्कल है. ओके, और सेमी सर्कल है, ये क्या होगा, ये सेमी सर्कल होगा. ओके, और सेमी सर्कल टाइप का क्या होगा, जो डिश होगा. ओके, वो जस्ट वही होता है आपका वुड रूफ की. ये एडजस्टेबल होता है. जैसे एक बार आप इधर से किए, ठीक है, फिर मीन्स इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट अपन एडजस्ट कर देंगे. जो कीवे होगा, कीवे क्या है, एक पैसेज है जिसमें हम पैसेज है, कीवे क्या है, एक पैसेज है. कीवे क्या पैसेज है, जो आपका हब और शाफ्ट दोनों में क्या होता है, ये पैसेज होता है. दोनों में आधा आधा पार्शियली पैसेज होगा, उसमें पार्शियली हब में भी होगा, पार्शियली आपका शाफ्ट में भी होगा. और जो कीवे होगा, उसी कीवे मतलब जो पैसेज होगा, उसी पैसेज को हम बोलते हैं क्या, कीवे. ओके, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी की को हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, उसके अंदर घुसाते हैं. ओके, उसके अंदर घुसाते हैं, जिससे कि चलते रिलेटिव मोशन को क्या करे, प्रिवेंट करे. ओके, तो ये है जस्ट आपका एडजस्टेबल की है. ओके, आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे इसमें एक्चुअली जो होगा, जो शाफ्ट में ही क्या करते हैं, पहले इसको हम इंसर्ट करते हैं, शाफ्ट में इंसर्ट करके फिर उसके बाद हम जब हम हब को लगाएंगे तो एक तरफ से क्या होगा, थोड़ा सा एक तरफ नीचे आ जाएगा, फिर उसको हम इंसर्ट करके फिर बाय फोर्सली हम उसको टाइट कर देंगे. ओके, तो देखिए मेन एडवांटेज क्या है वुड रूफ का. ओके, इट
accommodate itself to any taper in the hub या boss या meeting piece. ओके, एकोमोडेट हो जाता है, टेपर फॉर्म में अपने आप हो जाता है, एडजस्टेबल है. ओके, इट यूज फॉर टेपरिंग शाफ्ट एंड. ओके, टेपरिंग शाफ्ट अगर है तो वहाँ पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं. टेपरिंग शाफ्ट एंड है तो वहाँ पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं. ओके, डेप्थ ऑफ की वे वीकेंड्स द शाफ्ट. ओके, इसमें आप जो कम होगा किसका, डेप्थ ऑफ कर्व इसमें शाफ्ट में. ओके, इट कैन बी यूज एज ए फेदर की. ओके, और इसको एज ए फेदर की के फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. ओके, अगला है सैडल की. ये दो टाइप्स के होते हैं सैडल की. देयर आर फ्लैट सैडल की एंड हैलो सैडल की. फ्लैट सैडल की मीन्स जो भी हमारा जो फ्लैट सैडल क्या होगा, तो पहले तो एक टेपर्ड की है. ओके, टेपर्ड की है और ये जो इसका जो सरफेस होगा ऑन द शाफ्ट ये फ्लैट फॉर्म में होगा, यानी फ्लैट फॉर्म में होगा. फ्लैट फॉर्म मीन्स प्लेन होगा. ओके, जो आपको देख सकते हैं फिगर में, ये जो फिगर है आपका फ्लैट सैडल की का है. ओके, ऊपर होगा एकदम फ्लैट फॉर्म में होगा. इसमें आकर फिर हम क्या करें, शाफ्ट से देखिए अटैच है और इसमें हम क्या लगाएंगे, शाफ्ट लगाएंगे, जिसके थ्रू क्या होगा ये शाफ्ट अगर हब इंसर्ट करेंगे तो क्या करेगा, उसके अगर टॉर्क को ट्रांसमिट करना होगा तो इसके थ्रू ट्रांसमिट करेगा. ओके, सो सेकंड इज द हॉलो सैडल की. this one is the hollow saddle key. It means this type of key which is insert in the shaft. Okay, insert in the shaft, one portion insert in the shaft and other curve portion insert in the hub, so that prevent the relative motion between the shaft and hub of the pulley. Okay, next one is the tangent key. The tangent key is the fitted in the pair at right angle as shown in figure. Okay, 13.6 आप देख सकते हैं 13.6 में. ओके, तो ये है आपका टेंजेंट की है. ओके, और ये मीन्स ये क्या होगा, आपका टेंजेंशियली क्या करेंगे, हम फिट करेंगे कि इसमें आपके शाफ्ट पे, जिससे कि क्या होगा और रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा शाफ्ट और हब के बीच का रिलेटिव मोशन को. ओके, नेक्स्ट वन राउंडेड की. ओके, राउंड की. ओके, तो राउंड की एस इन फिगर आप देख सकते हैं. ए सर्कुलर इन सेक्शन एंड फिट इन द होल ड्रिल्ड बाय द पार्शियली इन शाफ्ट एंड पार्शियली. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसका एक क्वालिटी क्या है कि हम पहले क्या करेंगे, शाफ्ट और जो आपका हब है उसको एक दूसरे में इंसर्ट करके फिर हम ड्रिल के थ्रू हम क्या करें, होल कर देंगे. होल करने के बाद जिसमें पार्शली आपका होल होगा, आपका पार्शली सम होल होगा शाफ्ट में, पार्शली होगा किसमें, हब में, फिर हम इसको इंसर्ट कर देंगे. ओके, इट मीन्स इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका एडवांटेज है कि हम अगर पहले अटैच कर लें उसके बाद भी हम क्या करते हैं, इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं बाय ड्रिलिंग. ओके, राउंड की. अब ये देखिए एसपी लाइन की. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एसपी लाइन की, यानी ये क्या होगा, 3 डायमीटर, अगर जो भी हमारा शाफ्ट है उसके 3 4 4 देख रहे हैं, 4 की इसके अंदर होगा, यानी उसका शाफ्ट का डिजाइन ही ऐसा होगा. और देखिए समटाइम की आर मेड द इंटीग्रल विद द शाफ्ट विच फिट इन द की वे ब्रोचेज इन द हब. ओके, ये जो होगा, जो इसका जो हब का ही जो शाफ्ट का डिजाइन होगा, ये देख रहे हैं जो आपका वाइट कलर का है, वाइट कलर का पोर्शन है वो है आपका शाफ्ट. और शाफ्ट में जो एक कीवे है, एक की है, वो इंटीग्रल पार्ट होता है. ओके, और जो शेडेड पोर्शन है वो आपका है हब. तो हब डायरेक्टली आपको उसको इंसर्ट करेंगे तो इसको रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, वो प्रिवेंट करेगा दोनों को. ओके, तो ये हुआ हमारे इस टाइप के जो की होंगे. ओके, इसको हम बोलते हैं एसपी लाइन की. ओके,
ये अगर आपको हेवी एक्चुअली यूज किया जाता है हेवी लोड अगर ट्रांसमिट करना हो, ओके, अगर हेवी लोड अगर ट्रांसमिट करना हो शाफ्ट से अगर पुली के थ्रू कहीं और, तो हम इसका यूज करते हैं एसपी लाइन की का, ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अब है फोर्स एक्टिंग ऑन द शंक की, ओके। तो फर्स्ट अपन आपको वी है कंसीडर द वी कैन कंसीडर द some assumption and some notation for the designing of key, okay। तो फर्स्ट वन इज द फोर्स F1, आप देख सकते हैं फोर्स F1 जो की अब ये है हमारा की, ओके। ये है आपका शाफ्ट के ऊपर लगा की जिसका लेंथ क्या है L है। इस पे एक फोर्स आ रहा है, रेडियली फोर्स एक्ट कर रहा है F1 और टेंजेंशियली फोर्स एक्ट कर रहा है किसमें, टेंजेंशियली एक्ट हो रहा है इस पे किस पे एफ टेंजेंशियली फोर्स हुआ और F1 जो हुआ आपका रेडियल फोर्स हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्स F1 ड्यू टू फीट ऑफ द की इन अ की वे एज इन टाइट फिटिंग स्ट्रेट की या इन टेपर्ड की when in a place, okay, these four produce to the compressive stress in the key which are difficult to determine in magnitude, okay। तो ये अगर हम जैसे कि अगर हम इसको बाई फोर्स हम क्या करेंगे इसको इंसर्ट करेंगे तो इस पे कंप्रेसिव फोर्स आएगा। वो कंप्रेसिव फोर्स आपका कौन सा है, आपका F1 है। F1 क्या है, कंप्रेसिव फोर्स या रेडियल फोर्स उसको हम बोल सकते हैं, ओके। सेकेंड है आपका फोर्स जो एफ फोर्स आएगा जो एफ फोर्स ड्यू टू टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, ओके। जो टॉर्क ट्रांसमिट करेगा शाफ्ट उसका फोर्स है क्या आपका क्या है एफ, ठीक है। एफ जो है फोर्स ड्यू टू टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, ओके। क्योंकि जो टॉर्क होगा एफ इंटू क्या उसका रेडियस हो जाएगा, ओके, एफ इंटू d/2, ओके। तो ये है आपका डिजाइन है, ओके। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ की इज यूनिफॉर्म, जो हमको एज्यूम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ द की इज is not uniform because force are concerned near the torque input end, okay। So this one is the or force acting at the key for the clockwise torque by transmitting the shaft to the hub are shown in figure, okay। तो ये हुए आपके जो आपको एजम्पशन थे जो आपको कंसिडरेशन लेना था, ओके। तो ये हुए आपका जिसमें हम इसमें आप देख सकते हैं डायमीटर ऑफ शाफ्ट क्या है डी, या लेंथ ऑफ की हमने क्या रखा है एल, जो रेडियल या कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है F1, जो शाफ्ट का विड्थ कितना है, शाफ्ट का विड्थ है आपका W एंड शाफ्ट का जो थिकनेस है वो है आपका T, ओके। F जो फोर्स लग रहा है फोर्स ड्यू टू द टॉर्क ट्रांसमिटेड, ओके, ड्यू टू टॉर्क ट्रांसमिटेड, ओके, ट्रांसमिटिंग द टॉर्क, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्ट्रेंथ ऑफ शंकी क्या होगा, लेट एज्यूम करते हैं हम क्या T इक्वल टू मान लीजिए T हमने एज्यूम किया टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, ओके। F है टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द शाफ्ट, ओके। F है यानी इट मीन्स टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, ओके, फोर्स ड्यू टू टॉर्क ट्रांसमिटेड, ओके, बाय द शाफ्ट। D है डायमीटर ऑफ शाफ्ट, L है लेंथ ऑफ की, W विड्थ ऑफ की, ओके, T है थिकनेस ऑफ। देखें इसमें जो शेयर स्ट्रेस एंड क्रशिंग स्ट्रेस जो होगा, क्योंकि क्रश करेगा धीरे धीरे फोर्स लगते लगते जो फोर्स लगेगा इस पर जब ये रोटेट करेगा तो इंस्टेंटेनियस फोर्स लगेगा, तो ऊपर वाला हाफ पार्ट क्या होगा क्रश आउट होगा। ऊपर वाला हाफ पार्ट जो थिकनेस है जो लेंथ थिकनेस का ऊपर वाला हाफ पार्ट क्रश होगा, नीचे वाला हाफ पार्ट क्रश होगा, ओके। नीचे वाला क्रश होगा मतलब ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे अधिक देर रहता है धीरे धीरे, उसको खियाना बोलते हैं जिसको भोजपुरी में, यानी बियर आउट हो जाएगा, ओके, बियर आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं शियर स्ट्रेस हम टाउ ले रहे हैं और क्रशिंग स्ट्रेस जो है आपका कंप्रेशन के थ्रू जो क्रशिंग स्ट्रेस होगा वो हम मटेरियल का लेंगे कितना सिग्मा सी, ओके। अब जब हम डिजाइन करेंगे, ओके,
तो देखिए क्या है, ए लिटिल कंसिडरेशन विल बी सो ड्यू टू द पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, द की में फेल ड्यू टू द शेयरिंग या क्रशिंग। शेयर के थ्रू फेल हो सकता है, यानी वो टूट सकता है, बीच से ही टूट सकता है, या क्रशिंग के थ्रू वो धीरे धीरे खिया कर वियर आउट हो जाएगा, ओके, ख़त्म हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका। तो कंसिडरिंग द शेयरिंग ऑफ द की, फर्स्ट अपन हम क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ की, यानी मान लीजिए जो हमारे जो की है फेल हो रहा है ड्यू टू द शेयरिंग, ओके। तो टेंजेंशियल शेयरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द शाफ्ट क्या होगा, जो की पर एक्ट करेगा वो होगा आपका जो शाफ्ट को जो टेंजेंशियल जो एरिया को रेजिस्ट करेगा, जो एरिया रेजिस्ट करेगा, ओके, वो होगा आपका फोर्स एरिया रेजिस्टिंग द शेयर, ओके, शेयर इनटू शेयर स्ट्रेस। ये टोटल फोर्स आएंगे जो उस पर टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। जैसे आपका यहाँ पर देख सकते एफ क्या है आपका टेंजेंशियल फोर्स है, एफ क्या है आपका टेंजेंशियल फोर्स है। और इस फोर्स को हम कैसे इस फोर्स को अगर फाइंड आउट करना होगा, इस फोर्स का यानी देखिए ये क्या लग रहा है, ये संग की है, तो ये विड्थ जो है इसका विड्थ के क्या लग रहा है, पैरेलल लग रहा है। तो पैरेलल तो हम जानते हैं फोर्स क्या होता है, शेयर फोर्स होता है, शेयर स्ट्रेस होता है। फोर्स इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट टेंजेंशियल एरिया through which force is applied, okay, through which force is applied, okay। तो इसका टेंजेंशियल एरिया क्या हो जाएगा, W यानी विड्थ इंटू लेंथ, इसका टेंजेंशियल एरिया होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो जो फोर्स आएगा, टेंजेंशियल फोर्स आएगा, वो क्या हो जाएगा आपका एरिया रेजिस्टिंग शेयरिंग या एरिया पैरेलल टू द अप्लाइड फोर्स इक्वल टू हो जाएगा L इंटू डब्ल्यू, लेंथ इंटू विड्थ इंटू क्या शेयर स्ट्रेस को हुआ टाउ। तो ये हो गया आपका शेयर फोर्स, ओके, या टेंजेंशियल फोर्स, ओके। अब इस फोर्स के चलते क्या होगा, टॉर्क ट्रांसमिट करेगा, क्या इसी फोर्स के चलते टॉर्क ट्रांसमिट करेगा शाफ्ट किसको, पुली को। तो टॉर्क कितना ट्रांसमिट करेगा, तो टॉर्क ट्रांसमिट करेगा T इंटू एफ क्रॉस D/2। एफ क्या है आपका टेंजेंशियल फोर्स है, D/2 क्या होगा, उसका रेडियस होगा। तो हम जानते हैं टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, क्योंकि सर्कुलर शाफ्ट है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा उसका रेडियस, तो रेडियस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट हो जाएगा LW इंटू टाउ इंटू D/2, ओके। तो ये हुआ आपका टॉर्क ड्यू टू द शेयरिंग, ओके, टॉर्क ड्यू टू टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट ड्यू टू द शेयरिंग, ओके। अब कंसीडर करेंगे क्रशिंग ऑफ द की। तो क्रशिंग जब होगा इसमें शाफ्ट में की में, तो ये होगा ये होता है आपका थिकनेस के, यानी क्रश होगा थिकनेस के एलोंग, यानी हाफ ऑफ थिकनेस ऊपर क्रश हो गया, यानी हाफ ऑफ जो हब में जो इंसर्ट होगा उसका क्रश होगा, नहीं तो जो आपका शाफ्ट में होगा उसका क्रश होगा। तो हाफ ऊपर हाफ नीचे क्रश होगा, ओके। तो क्रशिंग के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर क्रशिंग। तो एफ द एरिया ऑफ रेजिस्टिंग ऑफ क्रशिंग क्या हो जाएगा, जो इसका लेंथ होगा इनटू थिकनेस का हाफ होगा, हमने बोला थिकनेस का हाफ यानी टी का हाफ ऊपर और टी का हाफ नीचे, यही तो क्रश आउट होगा, ख़त्म होगा, धीरे धीरे घिस जाएगा, वियर आउट हो जाएगा। तो इसलिए हम जो रेजिस्टिंग एरिया है उसको हम लेंगे क्या, L इंटू लेंथ इंटू T/2 और क्रशिंग स्ट्रेस क्या है, सिग्मा C। इसलिए जो यहाँ पर फोर्स होगा, ओके, जो यहाँ पर फोर्स होगा, जो यहाँ पर फोर्स यानी फोर्स इक्वल टू हो जाएगा L इंटू टाउ बाई T/2 इंटू सिग्मा C। अब देखिए टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, तो अब किसके टर्म में, क्रशिंग फोर्स के टर्म में हो जाएगा F इंटू D/2, वहीं F इंटू D/2, और F आपका होगा, F तो आपका होगा क्या, L इंटू T/2 इंटू सिग्मा C प्लस इंटू D/2, ओके, D/2 क्या हो, इसका रेडियस हो गया। अब देखें दोनों को अगर हम क्या करें, दोनों ट्रांसमिटेड टॉर्क है, ए है आपका ड्यू टू शेयरिंग और दूसरा है को ए है, जो इक्वेशन है आपका, एक इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, बोथ आर द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, okay, both are the torque transmitted by shaft through shearing force and crushing force, so that
so that equation 1 or equation 2 are equating. Okay, both are equal, equating both equations, so that LW into tau is into d by 2 is equal to L into t by 2 into sigma c into d by 2. Here after the calculation we can get, okay, we can find W by t is equal to sigma c by 2 tau. Okay, this is the relation between the width, thickness and crushing stress and shear stress. Okay, so अब यहाँ पर we can this is the main relation of between the shaft and hub. Okay, and for the keyway. Okay, in order to find the length of key transmit full power of the shaft, the shearing strength of the key is equal to the torsional shear strength of the shaft. Okay, तो जो आपका जो यहाँ पर होगा, जो शेयरिंग स्ट्रेंथ आया ऑफ द की क्या होगा, जो टॉर्क ट्रांसमिटेड हुआ एल इंटू डब्ल्यू इंटू टाउ इंटू डी बाई 2, जो टॉर्क ट्रांसमिटेड होगा वो किसके इक्वल होगा, जो यहाँ पर टॉर्सनल शियर स्ट्रेस होगा. ओके, द टॉर्सनल शियर स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट जो होगा, क्योंकि शाफ्ट ही तो के थ्रू ही ना ट्रांसमिट हो रहा है, तो ट्रांसमिट हो रहा है कि आपका पावर थ्रू की होते हुए पुली में. ओके, तो जितना शाफ्ट इंड्यूस करेगा, तो शाफ्ट में हम पढ़ चुके हैं, तो शाफ्ट कितना टॉर्क ट्रांसमिट करता है, टी इक्वल टू, अगर उसका टॉर्सनल स्ट्रेस किसका शाफ्ट का अगर T1 हो, टाउ वन है माना है हमने टाउ 1, तो यहाँ पर टी इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 16 टाउ 1 इंटू डी पावर क्यू. अब ये है आपका शाफ्ट कितना टॉर्क ट्रांसमिट करेगा. ओके, ये है की, अब वही शाफ्ट की के थ्रू पुली में कितना ट्रांसमिट होगा, तो दोनों तो टॉर्क हमारा टॉर्क ही है, तो दोनों तो टॉर्क ट्रांसमिट होगा पुली को ही. ये शाफ्ट के अंदर इतना आया, ये आया आपका की के थ्रू, की के अंदर आया, और यही टॉर्क इसमें ट्रांसमिट हो जाएगा उसके बाद पुली में. ओके, तो दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है, बट टॉर्क तो सेम ही रहेगा, इसलिए हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे. तो इक्वेट किया हमने, तो देखिए एल इंटू डब्ल्यू इंटू टाउ इंटू डी बाई 2 इजकल टू पाई बाई 16 इंटू टाउ 1 इंटू डी पावर क्यू. तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, एल इजकल टू निकालेंगे, तो हम मान लेते हैं. ओके, यहाँ पर जो आफ्टर सॉल्यूशन वो आएगा आपका 1.571 इंटू डी इंटू टाउ 1 बाई में टाउ. ओके, क्योंकि हमारा जो शाफ्ट का डायमीटर है और यहाँ पर जो डायमीटर हमने बहुत ही दोनों को हम सेम माना. ओके, अब देख, और यहाँ पर देख लीजिए जो विड्थ हमने माना है, क्या जो विड्थ की जगह हम क्या लिखे हैं, डी बाई 4. ओके, अगर ऐसा होगा कि दोनों शाफ्ट और आपका जो शाफ्ट है और की का मटेरियल दोनों क्या हो आपका सेम हो, तो टाउ वन और टाउ क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो लेंथ आएगा, लेंथ ऑफ शाफ्ट, लेंथ और डायमीटर ऑफ शाफ्ट के फॉर्म में, जो लेंथ और डायमीटर ऑफ शाफ्ट के बीच जो रिलेशन आएगा वो होगा एल इजकल टू 1.571 इंटू डी. ये हुआ आपका टोटल, एक रिलेशन आपका ये हो गया, एल इजकल टू 1.571 इंटू डी. ओके, ये हुआ आपका एक रिलेशन, ये हो गया, और दूसरा रिलेशन हो गया आपका डब्ल्यू बाई टी इजकल टू सिग्मा सी बाई में 2. ये दो रिलेशन हुए आपका, तो इसको आपको याद रखने हैं, मेमोराइज करना है इसको. और ये था आपका डिजाइन ऑफ की. आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट. ओके, so in next lecture, next topic, okay, we have discussed.